برطانوی وزیراعظم یورپ سے انخلا کے لیے ایک نئی ڈیل لے آئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس معاہدے کی منظوری کے لیے اراکین اسمبلی کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اراکین اسمبلی سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے تھریسا مے نے اپیل کی کہ اراکین پارلیمنٹ نئی بریگزٹ ڈیل کی بھرپور حمایت کریں، اور اگر ایم پیز نئی بریگزٹ ڈیل کی حمایت کر دیں تو وہ بریگزٹ پر ایک نئے ریفرینڈم کے لیے بھی پارلیمنٹ میں بل لائیں گی۔ تھریسا مے کے بقول نئے بل میں ورکرز کے حقوق، ماحولیاتی تبدیلیوں اور آئرش بارڈر سے متعلق نئی ضمانتیں شامل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب سینئر وزیر بورس جانسن سمیت متعدد ٹوری اور لیبر اراکین اسمبلی نے نئی ڈیلز کی مخالفت کی ہے۔ جیریمی کاربن کہتے ہیں پرانی ڈیل کو نئی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ کسی صورت اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ لندن کے علاقستان میں دوسری مرتبہ پاکستانی نژاد محمد صادق نے میئر منتخب ہو کر تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے کونسل کے 54ویں میئر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سمیت بڑی تعداد میں ایم پیز، کونسلرز اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ لندن میں گوروں کے اکثریت والے علاقے میں پاکستانی نژاد محمد صادق نے دوسری مرتبہ میئر منتخب ہو کر 54ویں میئر کا پروقار تقریب میں حلف اٹھایا۔ لندن کے علاقے سیٹن میں برطانیہ کی تیسری بڑی پارٹی لبرل ڈیموکریٹک کے کونسلر محمد صادق 20 سال قبل لاہور سے لندن منتقل ہوئے اور کاروبار کے ساتھ ساتھ برطانوی سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے، اور پہلی مرتبہ انہیں 2015 سے 16 میں میئر منتخب کیا گیا۔ سیٹن کونسل کے کونسلرز نے انہیں 2020 سے 2019 کے لیے بلا مقابلہ میئر منتخب کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا کہ محمد صادق کا دوسری مرتبہ میئر منتخب ہونا پاکستانیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ایسے مقام پر ان کا پہنچنا دوسرے پاکستانیوں کے لیے بھی جذبہ پیدا کرے گا۔ پاکستانی کمیونٹی کے بڑے نمایاں شخصیت صادق صاحب جو ہے میئر الیکٹ ہوئے ہیں، میں ان کو ان کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کی جو کمیونٹی یہاں پہ سٹن میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کاؤنسلرز کی، میئر کی، اور اس کے علاوہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں کے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ہمارے لیے، ملک کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہائی کمیشن کے لیے یہ بہت ہی باعث افتخار ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک کے ایم پی ٹام بریک سمیت دیگر شرکاء نے بھی محمد صادق کو میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد صادق اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ I know from having worked with him for many years that he is someone who is fully committed to the community and will work very hard on behalf of all of the residents of London Borough of Sutton, and I'm sure he will engage fully with all the voluntary groups, businesses as he's just set out, and is someone who I'm sure in his term will be very well respected and will do a great job for the London Borough of Sutton. اس علاقے میں جو گورا علاقہ ہے، صادق صاحب کو دوبارہ انہوں نے پھر الیکٹ کیا۔ So we're very pleased and we're very honored that he is mayor and representing also Pakistanis and the Asian community in Sutton, which is a predominantly white area. He worked incredibly hard in his previous mayoral year, and we know that he's going to be a great success. He's someone who really connects with local people. He cares what's happening in his local area, and he has an immense sense of civic pride. So we're really looking forward to this mayoral year, and we know that he's going to be a fantastic mayor. I could see he'd gone from being really excited to being actually quite down, and I just really felt for him as his ward colleague. So I'm really pleased that he's had this opportunity to do it again, and we're going to do our best to make sure he enjoys every single minute of it. پہلے بھی صادق صاحب اس باروں کے میئر رہ چکے ہیں، اور ان کی انتھک محنت کی وجہ سے اور ان کے ہارڈ ورک اور آنیسٹی کی وجہ سے یہاں کی باروں اور میئرز نے انہوں نے دوبارہ الیکٹ کیا۔ ظاہر ہے لب ڈیم نے انہوں نے چوز کیا ہے، جو کونسلر ہے انہوں نے چوز کیا، ان کا ورک دیکھ کے سب کے کہ ظاہر ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کونسلر تھے لوگوں سے ان کے مسائل حل کرتے تھے، سب کچھ آپ لوگوں سے جا کے گھر گھر ملے، ان کے مسائل حل کرے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی خوش ہوں گے۔ منتخب ہونے کے بعد میئر محمد صادق کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انگریز کمیونٹی کے اکثریتی علاقے میں کسی پاکستانی کو دوسری مرتبہ میئر منتخب کیا گیا۔ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں
کہ اللہ ताला ने मुझे एक दूसरा मौका दिया। मैं पहले भी आपको पता मेयर था और दोबारा अल्लाह ताला ने एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने की हैसियत से, ये सब जो है ये मेजॉरिटी गोरों का इलाका है, हमारे लोग बहुत कम है इधर, और गोरों के इलाके से दोबारा मुंतखब होना अल्लाह ताला के करम से इट्स एन ऑनर। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को प्रमोट करूं। मैं पाकिस्तान में जाऊंगा एज ए मेयर एज वेल, क्योंकि हमारा मुल्क तो वही है ना। लेकिन मेरा एम जो है वो सटन बरो को प्रमोट करना और पाकिस्तान को प्रमोट करना है। ब्रिटिश कम्युनिटी के अक्सरियती इलाके में किसी भी पाकिस्तानी का दूसरी मरतबा मेयर मुंतखब होना यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए एजाज़ है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन में उसे वोट देंगे जो मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनेगा। बरतानिया में मौजूद कश्मीरी क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया। MEP वाजिद खान की हिमायत के लिए बर्मिंघम में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं आबिद काज़मी अपने रिपोर्ट में। बर्मिंघम सिटी काउंसिल लेबर रूम में MEP वाजिद खान के एजाज़ में कुल जमाती कश्मीर बैनुल अक़वामी राब्ता कमेटी ने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें शॉन साइमन MEP, काउंसलर वसीम जफर, साबिक काउंसलर MEP उम्मीदवार अंसर अली खान, ज़ारा सुल्ताना, चौधरी खादिम हुसैन, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, काउंसलर मोहम्मद इदरीस, नामजद लॉर्ड मेयर काउंसलर चौधरी अजीम समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। वाजिद खान ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि वो बतौर मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मसला कश्मीर के हवाले से कुछ करना चाहते हैं। वाजिद खान का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म में मसला कश्मीर पर बहस वहाँ जारी तहरीक आज़ादी के लिए बड़ी कामयाबी है। गुजारिश है कि तंजीमों से प्लीज़ जितने ज़्यादा अपने ताल्लुक़ के फ्रेंड्स, दोस्त, अखबार में इनसे रब्ता करें और निकलें वोट डालने के लिए। और जो तंजीमें का यही मसला है कि वोट बहुत देते हैं लोगों के लिए, काउंसिल लेवल पर, MP लेवल पर, MEP लेवल पर, और काम भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ, जो काम अभी हुआ है पिछले 2 सालों में, ये तरीक़ी काम था। तन मन धन से हमारे एहसास, ख्यालात, जज्बात कश्मीरी लोगों के साथ हैं और माएँ और बहनें के साथ हैं, और हमें अज़म था कि कश्मीरियों के लिए कुछ करें। और मैंने अपनी टीम के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ हमने हिकमत अमली से काम किया है और हम कश्मीर को कभी नहीं नज़रअंदाज करेंगे। इस मौके पर MEP उम्मीदवार शान साइमन और दीगर शुरका का कहना था कि तमाम ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी कश्मीर दोस्त उम्मीदवारों को वोट दें ताकि मसला कश्मीर पर बेहतर पेशरफ्त हो सके। हमारी कोशिश है और हमारा ये ऐलान है कि कश्मीरी जहाँ भी है उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। Labour member of the European Parliament for the West Midlands. And I'm here today in Birmingham with my friend and colleague Sadare Quaid-e-Azam Wajid Khan MEP. We've been here today celebrating the work that he's done in the European Parliament on behalf of the people of Kashmir and the abuses of their human rights that go on every day in Kashmir. Now in the European Parliament for 2 years, Wajid Khan MEP and I and other Labour members of the European Part have been campaigning and have made more progress in 2 years in the European Parliament than in the previous 15, and that's why it's so important. जो भी कश्मीर के लिए काम करेगा हमारी फुली सपोर्ट होगी और हमारी बहुत बड़ी यहाँ पर कश्मीरी की तादाद है और इंशाल्लाह सब जितने भी हमारे भाई लेबर के जो हैं हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। जब तक ये बुलंद नहीं करेंगे कश्मीरियों का नहीं होगा। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाजिद को जिन्होंने 17 खिदमत दिया कि इन्होंने कश्मीर के लिए दिया, वैसे नहीं। अब बोलते थे कि पाकिस्तान कश्मीर की नहीं मदद करता, पाकिस्तान कश्मीर से मोहब्बत करता। Kashmiri is something that I have been passionate about all my life. I've campaigned for Kashmir alongside Palestine ever since I was a student, and if elected, this is something, you know, injustice in all forms is something that needs to be combated. And I think the European Parliament, like Ansar said, provides a great opportunity to not just raise awareness but make sure that the issue is being progressed along, you know, international law, to make sure that justice is served. So if elected, of course, it's in my blood. Being Kashmiri is something that I will definitely be championing wherever I find myself, including the European Parliament. कश्मीर की सब तंजीमों ने MEP से जो यहाँ पर मीटिंग की है, इसकी गर्ज़ ग़ायत यही थी कि हम बरतानिया भर में बसने वाले तमाम कश्मीरी जो बसते हैं उनसे गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, जो लोग जिस पार्टी से भी हैं लेकिन कश्मीर के बारे में आवाज़ बुलंद करते हैं, कश्मीर की सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को वोट दें।
यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ हमने बुलाया और उनसे बातचीत भी की है और हमने उनसे गुजारिश की है कि अगर आप कामयाब होते हैं तो आप मसला कश्मीर पर कश्मीरियों के कश्मीर काज के लिए सपोर्ट करें। बड़ा वाज़िया पैगाम है कि कश्मीर इशू जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और जब हम दुनिया में इक्वालिटी, फेयरनेस और सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ ये ज़रूरी है कि कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए। तकरीब में कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी शरीक थी, जिन्होंने वाजिद खान की मसला कश्मीर के हवाले से खिदमात को बेहद सराहा और उन्हें अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लीड्स के काउंसलर मोहम्मद इकबाल को वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस क्राइम पैनल का पहला एशियाई चेयरमैन मुंतखब होने पर कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। कम्युनिटी ने उनके एजाज़ में तकरीब सजाई, जिससे खिताब करते हुए काउंसलर मोहम्मद इकबाल का कहना था कि वो इस्लामोफोबिया और नाइफ क्राइम समेत तारिकीन वतन पर बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए किरदार अदा करेंगे। तफसीलात देखते हैं आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। लीड्स के पहले साबिक मुसलमान लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। वो वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस क्राइम पैनल के पहले मुसलमान चेयरमैन बन गए, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वेस्ट यॉर्कशायर, लीड्स, वेकफील्ड, डेविसबरी, ब्रैडफोर्ड, हेडर्सफील्ड समेत दीगर शहरों पर मुश्तमिल इन इलाकों में क्राइम की रोकथाम इस पैनल की बुनियादी जिम्मेदारी है। काउंसलर मोहम्मद इकबाल के बहसीयत चेयरमैन वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस पैनल संभाल पर लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं चौधरी शराफत, हफीज अहमद बट ने इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस क्राइम पैनल काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वो लीड्स सिटी काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पहले एशियन निजात पाकिस्तानी कश्मीरी पर एतमाद का इजहार किया। वो पुलिस में बेहतरी लाएंगे ताकि जुराइम में खातरख्वाह कमी वाक़ई हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश करूँ कि क्राइम को वेस्ट यॉर्कशायर में रिड्यूस करूं। ये जो हमारी पुलिस एंड क्राइम पैनल है जिसका मैं चेयर बना हूं, मुझे बनाया गया है, तो उसका काम है कि कमिश्नर को स्क्रूटनाइज करना, इंश्योर करना कि कम्युनिटी पुलिस सही काम कर रही है और पुलिस से वो फिर काम करेगा जिस एरिया में कमी है, जिस शोबे में हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि बर्गलीज पर ज़्यादा तवज्जो दें, कार थेफ्ट पर, और जिस किस्म के किसी किस्म के क्राइम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस साल की हमारी प्रायोरिटी है। तकरीब से ईस्ट लीड्स कम्युनिटी कमेटी के चेयरमैन काउंसलर आरिफ हुसैन, मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, लेबर पार्टी के रहनुमा चौधरी शराफत हुसैन और दीगर शख्सियात ने खिताब किया और काउंसलर इकबाल को ये एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की। काउंसलर मोहम्मद इकबाल को मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो करंट वक्त है इस यूके के अंदर या लीड्स के अंदर एशियन कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। उस पर इनका जाना नहायत ज़रूरी भी है और चैलेंज एक ये ओहदा है। ये एक हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात है कि पहले जो है ना एशियाई या मुसलमान जो है ना पुलिस एंड क्राइम पैनल के चेयर जो है ना यहाँ वेस्ट यॉर्कशायर से मुंतखब हुए हैं। उनका जो अक्सर जो रोल होता है कि जो पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर है उसको जो है ना होल्ड हिम टू अकाउंट, ठीक है, चेक्स एंड पॉलिसी जो होती हैं। ज़ाहिर है कि पुलिस जो अथॉरिटी है, जो ऑपरेशनल साइड है, जो क्राइम, उनके जो काम है उसको अगर कोई सही नहीं कर रहे तो उसको जो है ना पकड़ना, उसको सही करना, उसको उनका एक कहते हैं कि फ्रेंडली क्रिटिक होते हैं। काउंसलर इकबाल साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो पुलिस क्राइम पैनल के चेयर मुंतखब हुए हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हमें फ़ख्र है कि जो साहब चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए काउंसलर इकबाल और दीगर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इलाके में इस्लामोफोबिया, हेट क्राइम, नाइफ क्राइम और दीगर जुराइम में खातरख्वाह कमी वाक़ई होगी। लीड की जो कम्युनिटी है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ रही है। काउंसलर इकबाल साहब बड़े सीनियर काउंसलर हैं, इन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत वर्क किया है और हमें उम्मीद है कि इनको बहुत अच्छा ओहदा मिला और ये बढ़ चढ़ कर कम्युनिटी की सपोर्ट करेंगे। हासिल हुआ है जी कि हमारे एक्स लॉर्ड मेयर काउंसलर इकबाल साहब जो पुलिस क्राइम पैनल के चेयर बने। माशाल्लाह ये जितनी भी एशियन कम्युनिटी है, बल्कि जितनी भी कम्युनिटी है, उनके लिए फ़ायदा है कि हमारा अपना एक मुसलमान काउंसलर जो चेयर बना है। तकरीब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीड्स के सदर बाबा मोहम्मद रजाक, शाहिद कुरैशी, PTI रहनुमा नंबरदार अकरम, चौधरी मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद हफीज भट्ट, हाजी अब्दुल हमीद, चौधरी कुर्बान अली और दीगर ने शिरकत की।
اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے شمار خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کو جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے۔ بھکر سے اسلم بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ خالص اور قدرتی شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ 1000 سال تک بھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے۔ شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ روایت برقرار ہے۔ نیچرل غذا ہے جو قدرت کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کو ایک عام مشروب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی میں ملا کر اگر شہد کی مناسب مقدار استعمال کی جائے تو پانی کی کمی بھی دور ہوتی ہے، اور خاص کر بچوں میں جو چھاتی کے انفیکشن ہوتے ہیں، کھانسی، فلو، نزلہ، اس میں بہترین ٹانک اور بہترین دوا کے طور پر بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے اور شہد جمع کرنے کے بعد اسی یادداشت کے ذریعے اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیمرامین عامر نذیر کے ساتھ اسلم بلوچ، 92 نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔